Hello students and welcome back to my YouTube channel. This side Gaurangi Pundir. I hope you have started preparing for CUT UG, and if not then please start because the exams are really near. Starting with, I have started sociology first and I have uploaded one video of the unit 1, which is structure of Indian society, demographic structure and rural urban linkages and divisions. मैंने already एक video upload कर दिया, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं. I have also created a playlist in which I'll be uploading all the sociology related CUT updates, and also just students who were asking for political science, don't worry, as soon as this unit gets over I'll be uploading political science as well. Starting with the questions of this unit, what is the basic difference between formal demography and social demography? तो formal demography क्या होती है? Formal demography वो होती है जो quantity पे ध्यान देती है, और social demography वो होती है जो quality पे या फिर social reasons पे ध्यान देती है. तो हम पहले options पढ़ेंगे. क्या formal demography quality पे ध्यान देती है? Only? No. Social demography डाटा को इग्नोर कर देती है? No. Formal demography quantitative मेथड को यूज करते हैं और social demography social causes को? Yes. So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. Next question. According to the Malthus, who's Malthus? He gave an essay on population of growth. तो according to him, population किस उसमें चीज में rise करेगी? तो population rises in geometric progression. So answer will be C. Next question. Which country conducted its first modern census? So the first country who conducted the modern census was America. In which year did child sex ratio in India fall below the overall sex ratio for the first time? ऐसा कौन सा साल था जहाँ पे हमारा जो child sex ratio था वो गिर गया था below the overall sex ratio? So answer is B, that is year 2001. Next question. Which of the following is not a demographic indicator? यानी पे याद रखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन बहुत आते हैं नॉट या फिर ओनली वाले. सो नॉट में पूछा गया है तो बर्थ रेट भी होता है, फर्टिलिटी रेट भी होता है, डेथ रेट भी होता है, लेकिन आपका जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी का जो पर कैपिटा इनकम है, वो डेमोग्राफी का इंडिकेटर नहीं होता. क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी इज व्हाट? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पीपल. Next question. Which Indian states have the lowest total fertility rate as per as 2016 का डेटा? Lowest पूछा गया है. मैंने लास्ट वीडियो के अंदर we have covered the highest total fertility rate. तो अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो वो मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि which states have the highest total fertility rate. And in this video we'll be covering the lowest total fertility rate. तो यूपी, बिहार, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश and West Bengal. So the correct answer is Andhra Pradesh and West Bengal. Next question. The age group which considered in the working age population, यानी कि वो age group जो काम करती है. सो क्या वो 0 से 14 है? नो. 15 से 64 है? मे बी. 20 से 50? नो. 60 to 100? नो. वो तो एल्डरली आ गया. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 to 64. ये आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है. Next question. The term demographic dividend refers to decline in old population, increase in birth rate, high proportion of working age population or increasing in literacy. So जो demographic dividend होता है उसका मतलब होता है कि आपकी जो ज़्यादा proportion है वो working age population है. Next question. The lowest recorded growth rate in India was during which decade? यानी कि जो सबसे कम हमारा growth rate हुआ था वो कौन से decade में हुआ था इंडिया के अंदर? So it was during the 1911 to 1921. And इसका रीजन अभी हमें आगे के MCQ के अंदर will be covering it. According to 2011 census, what was India's population? So this is directly from your NCERT कि इंडिया की population 2011 के census में क्या थी? So it was 1.21 billion. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज डिपेंडेंसी रेशियो मीन्स? डिपेंडेंसी रेशियो का क्या मतलब होता है? जब एक नॉन वर्किंग आदमी एक वर्किंग आदमी के ऊपर डिपेंड हो जाता है अपने खाने पीने के लिए. यानी कि जब मैं एज अ नॉन वर्किंग इज डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स फॉर माई लाइवलीहुड, फॉर माई सस्टेनेबिलिटी. सो पॉपुलेशन नॉट वर्किंग एज कंपेयर टू द वर्किंग पॉपुलेशन इज नोन एज डिपेंडेंसी रेशियो. Next question, which is question number 12. Which epidemic killed 12.5 million people in India in 1918 to 1990? ऐसे क्या वो हुआ था एपिडेमिक जिसकी वजह से इतने सारे लोग मरे थे? सो द आंसर इज स्पेनिश फ्लू. और अगर हम ये 1989 को हटा के 2019 और 2020 कर ले तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा
COVID-19. So it was also an epidemic which killed more than 12 million people in India. Next question. The decline in the birth rate is slower than the decline in death rate. ये कह रहे हैं कि जो birth rate है वो आपका कम नहीं हो पाता, वो कम धीरे से होता है, लेकिन डेथ रेट आपका आसानी से कम हो जाता है. तो देखो डेथ रेट आपका कैसे कम हो सकता है, जब आप टेक्नोलॉजी को एडवांस करो. टेक्नोलॉजी को कैसे एडवांस करेंगे आप? टेक्नोलॉजी को एडवांस करेंगे बाय इस्टेब्लिशिंग हॉस्पिटल्स, बाय गुड मेडिकल फैसिलिटीज़. तो आपकी जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा, लेकिन आपकी जो बर्थ रेट है वो इतनी आसानी से कम नहीं होता, बिकॉज आपके जो लोग हैं उनकी कल्चरल और सोशल नॉर्म्स इतनी ज़्यादा वो होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो रेजिस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं चेंज करने के लिए. Next, life expectancy refers to number of years a person is living is expected to live. What is meant by replacement level? Replacement level क्या होता है? So replacement level refers to when a generation exactly replaces the previous, यानी कि जो लोग पैदा हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिप्लेस कर रहे हैं उनको जो प्रीवियस लोग मर गए थे, जिनकी डेथ हो गई थी. तो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the child sex ratio in India in 2011? 2011 में इंडिया का सेक्स रेशियो क्या था, चाइल्ड सेक्स रेशियो? सो इट वॉज 919. नाउ अब आप बोलेंगे मैम इतना ज़्यादा डेटा लर्न नहीं होता, बट जो आपका डेमोग्राफी वाला चैप्टर है उसके अंदर ऐसा ही डेटा है, सो वी हैव टू लर्न इट फ्रॉम द एनसीईआरटी. विच स्टेट हैड द वर्स्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो? वर्स्ट कौन से में था? सो इट वॉज हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड आफ्टर इमरजेंसी बाय नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. तो प्लानिंग प्रोग्राम को चेंज करके वेलफेयर कर दिया था, एंड दिस वॉज इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. विच एक्ट रेगुलेट्स द मिसयूज ऑफ प्रीनेटल डिग्नोस्टिक? ये पहले पता चल जाएगा. सो इट इज PNDD एक्ट, विच इज द प्रीनेटल डिग्नोस्टिक एक्ट इन 1994, जिससे आप जो मिसयूज है उसको रेगुलेट करा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इन इंडिया? अब यहाँ पे आपका अर्बन पॉपुलेशन की क्या वो थी, कितने लोग अर्बन एरियाज में रह रहे थे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? सो इट वॉज 31.2%. कौन सा ऐसा इकोनॉमिक्स था जिसने बोला था कि जो फेमाइन्स है दे आर कॉज्ड बाय एंटाइटलमेंट फेलियर्स दैन फूड शॉर्टेजेस? इनका कहना था कि आप जो लोगों को एंटाइटलमेंट कर देते हो ना कि दिस इज एलीट क्लास, दिस इज द अपर क्लास एंड दिस इज अ लोअर क्लास, ये इसकी वजह से फेमाइन्स हो रहे हैं. सो इट वॉज Amartya Sen. Again, it is a previous year question. Which concept explains that young labor force brings growth in supported by employment? एक ऐसा concept था जो ये बोलता है कि अगर आप लेबर फोर्स को लेके आओगे ना तो आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी अगर आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर पाओगे. सो इट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड उन्होंने बोला था. अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट यंग लेबर फोर्स की वजह से ज़्यादा ग्रोथ होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which regions are protected to contribute 50% of India's population growth by 2041? ऐसे कौन से दो regions हैं, कौन से दो areas हैं, कौन से दो state हैं जिसकी वजह से इंडिया की population growth में बढ़ावा आएगा? So obviously we know the answer, यूपी बिहार, सबसे ज़्यादा population growth यहीं से ही बढ़ रही है. What was the goal of national health policy in 2017 regarding the life expectancy? यानी कि जो हमारी national health policy बनी थी उनके अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या गोल था? सो उनके अकॉर्डिंग ये था कि वी विल बी इंक्रीजिंग टू द एज ऑफ 70 years by 2025 and we are already in 2025, so let's hope what happens. Next question. Which of these is a factor for rural to urban migration mentioned in the chapter? Availability of agricultural jobs, easy lifestyle, anonymity and job opportunities, या फिर government compulsion? So please let me know in the comment section what is the correct answer for this. And with this we have completed 2 videos of the chapter. This is my Telegram channel, and for the you can comment down. I will share the link also. You will get the PDF of this video along with the notes of this video,